نہیں پڑھتے آج ان سے پوچھو انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور جنہوں نے پڑھی ہیں ان سے پوچھو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، وقت ان کا بھی گزر گیا، اور جنہوں نے اتنے دن نہیں پڑھی یا کمی بیشی کی ان کا بھی گزر گیا، لیکن جنہوں نے پڑھی ہے ان کا اجر باقی ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ تراویح کی اہمیت نہیں، حالانکہ حدیث میں ہے من قام رمضان ایمان و احتساب، جو آدمی قیام رمضان کرے، تراویح کی پابندی کرے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ تراویح پڑھتا ہے، جو ہی رمضان گزر جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن احتساب کے ساتھ، یہ احتساب کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں جو رکھتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں، وہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ رمضان آئے، ہماری 11 مہینے کی زندگی کی اور رمضان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے، یہ احتساب ہے۔ 11 مہینے کی زندگی کچھ اور ہے، رمضان کی زندگی کچھ اور ہے، تبدیل ہو گیا، بزرگ بن گیا، عبادت کے اندر مست ہو گیا، اللہ کے سامنے بیٹھ کر تنہائی میں روتا رہتا ہے، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہا ہے، یہ ہے احتساب۔ اگر پہلی زندگی میں اور آج کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اور دوسرا احتساب کا معنی یہ ہے، اس کو توجہ سے سنو، کہ رمضان گزر جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب نظر آئے، تبدیل ہو گیا، اب پہلے کی طرح نہیں، رمضان گزرنے کے بعد اس کی دل کی کیفیت اور ہو گئی۔ پہلے دل میلا تھا، دل کالا تھا، گناہوں سے اٹا ہوا تھا، دل میں اندھیرا تھا اور گناہوں کی ظلمت تھی۔ رمضان جانے کے بعد دل میں اجالا اور نور پیدا ہو گیا، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو گئی، نماز کی پابندی پیدا ہو گئی، تہجد کی پابندی پیدا ہو گئی، حرام کھانے سے بچ گیا، زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ فرمایا اس نے رمضان کی قضا کی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن زندگی میں اگر غور کریں ہم تو رب کعبہ کی قسم ہے، پہلی والی زندگی 11 مہینے کی، رمضان میں کوئی فرق نہیں، اور رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، ہم ویسے کے ویسے کھڑے ہیں۔ تو ایسے رمضان کا میرے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشراب، یہ روزہ اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں کھانے پینے سے روکا جائے، اللہ کہتا ہے روزہ اس لیے آیا ہے تمہارے اندر تبدیلی لائی جائے۔ پھر اللہ کی مدد ہے، نیکی کرنے میں آسانی کر دی، شیاطین کو قید کر دیا گیا تاکہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کریں اور یہ آئیں مجھے راضی کریں، فرمایا تبدیلی آ جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ رمضان آئے گزر گئے، یہ ویسے کا ویسا کھڑا ہوا ہے، تبدیلی کوئی نہیں آئی، ویسے کے ویسے دل کالے سیاہ، ویسے کے ویسے گناہوں سے لبریز۔ فرمایا ایسے رمضان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، یدع طعامہ و شراب، اس نے بس کھانا پینا روکا ہے، ورنہ تھوڑا سا بھی ثواب اس کو نہیں ملا۔ تو میرے بھائیو رمضان یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے، پہلے 11 مہینے کی زندگی اور رمضان کی زندگی میں فرق نمایاں ہو، اور رمضان گزر جانے کے بعد فرق نمایاں ہو۔ فرمایا ایسا کوئی رمضان اختیار کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں کوئی چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانے نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، یہ لوگ ہیں رمضان کی قدر کرنے والے، کہ ایسے لوگ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے کہ ان کو مال تجارت، خرید و فروخت، دنیا کی محبت نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ زکات ادا کرنے سے روکتی ہے، نہ روزے رکھنے سے روکتی ہے۔ وہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کو وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس سب میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو اگر تبدیلی نہیں آئی، تزکیہ نفس رمضان کے آنے سے نہیں ہوا، اگر معاملات میں، اخلاق میں اور دل میں نور ایمان نہیں آیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے سوچنے کی ضرورت ہے، ایسے روزے رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان آئے تبدیلی آئے، معاملات میں تبدیلی آئے، اخلاق میں تبدیلی آئے، اس لیے تزکیہ نفس یہ رمضان آیا ہے، دل کے اندر خوب مخلص کر لو، نیت کر لو کہ ساری گناہ جو پہلے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور بعد کے اندر کوئی گناہ نہیں کریں گے، ورنہ دن گزر گیا، روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، کتنا بڑا نقصان کیا یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا، حدیث کو توجہ سے سنو، آج نوجوان ہے، صحت مند ہے، روزہ نہیں رکھا کوئی بات نہیں رکھا تو کیا ہو گیا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، پھر اللہ اسے قیامت تک زندگی دے دے اور وہ آج سے لے کر قیامت تک مسلسل نفلی روزے رکھے، رمضان کے چھوڑنے کا خسارہ پورا نہیں کر سکتا۔ کیا سمجھا؟ رکھ لیا کوئی بات نہیں، نہ رکھا کوئی بات نہیں۔ سب سے بڑا ناکام و نامراد وہ بندہ ہے کہ زندگی میں رمضان آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، ایک جیسا ناکام آدمی ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو تبدیلی پیدا کرو، یہ کھانے پینے چھوڑنے کی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تمہارے دل متقی بن جائیں۔ اگر دلوں میں تبدیلی نہیں آئی، گناہ نہیں چھوڑا، رمضان کے جانے کے بعد اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی، تو اس نے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔
लअल्लकुम तत्तकून, ये दिलों की तब्दीली के लिए है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने वो हदीस बारहा सुनी है, हम कहते हैं जो रोजे रख लिए कोई बात नहीं, झूठ चलता रहे, फिल्में चलते रहे, गाने चलते रहे, हराम चलते रहे, कोई रोजा तो रखा है? ऐसे रोजे की कोई कीमत नहीं है। असल रोजा तो है दिलों का तकवा पैदा करने के लिए। आपने वो हदीस बारहा सुनी कि सबसे पहले जहन्नम में कौन जाएगा? उनके बदनों पर आमाल का वजन होगा, लेकिन जहन्नम में जब सबसे पहला जाने वाला वो आलिम और कुरान का कारी होगा। आलिम होना बड़ा अमल है। अगर 1000 बंदा इबादत कर रहा हो और एक आलिम सो रहा हो, तो हदीस में है उसकी नींद पर जितना सवाब है 1000 बंदे के रात को जागने पर इतना सवाब नहीं है। क्यों? कि उसने जो इल्म हासिल किया, तुम्हें पता नहीं कि उसने कितनी मेहनत की है, तुम्हें पता नहीं वो कितनी रातों को जागा है, तुम्हें पता नहीं उसका खून पसीना कितना जला है। आलिम उसको नहीं कहते कि हमारे जैसों को देखो तो आप कहें आलिम है। आलिम देखना है तो अनवर शाह कश्मीरी को देखो। जब अंग्रेज ने कुतुबखाने जलाने की कोशिश की कि मुसलमानों के ये कुरान जला दो, हदीस जला दो, असूल फिका की किताबें सारी जला दो, ना कुछ होगा, ना पढ़ेंगे, ना इनके पास दीन होगा, जला दो। हिंदुस्तान में तहरीक चली और दारुल देवबंद के सारे असातिज़ा परेशान होकर बैठे हैं, बे अंग्रेज कुतुबखाना जलाने की कोशिश कर रहा है। और कुतुबखाना कितना था? 17 मंजिलें, एक मंजिल, फिर उसके ऊपर दूसरी मंजिल। मैंने जामिया अशरफिया लाहौर का कुतुबखाना देखा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, आप किताबों को शुमार नहीं कर सकेंगे, इतनी किताबें। उसका कुतुबखाना कितना बड़ा होगा? 17 मंजिलें, करोड़ों किताबें पढ़ी हुई हैं, कुरान की, तफसीर की, हदीस की, असूल हदीस की, तारीख की, हर मौजू पर किताब, इंग्लिश में किताब, फारसी में किताब, अरबी में किताब, 17 मंजिलें। अब उलमा बैठे हुए हैं, गमगीन है कि अगर कुतुबखाना जल गया तो बहुत बड़ा जखीरा इल्म का खत्म हो जाएगा। अनवर शाह कश्मीरी उठे और गए, जो उस कुतुबखाने का निगरान था, उसको कहा जरा मुझे घुमवाओ। वो कुतुबखाने का निगरान पकड़ कर गया, नीचे मंजिल में किताबों को देखते रहे, फिर ऊपर वाली मंजिल में गए, किताबों को देखते रहे, फिर ऊपर वाली मंजिल में 17 मंजिल घूमने के बाद वापस आए जहां उलमा की मीटिंग हो रही थी। उनको कहा क्यों परेशान हो? कहने लगे इतनी किताबें हैं, लाखों करोड़ों, अगर जल गई तो इनका जखीरा खत्म हो जाएगा। तो अनवर शाह कश्मीरी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, अगर अंग्रेज आकर ये सारी किताबें जला भी डाले तो मैं मोहम्मद का गुलाम इन किताबों को दोबारा लिखवा दूंगा। ये सारी किताबें मेरे सीने में महफूज हैं। ये आलिम आपने देखा, हम अपने आलिम, मुझे देखा, उनको देखा, हमने कहा शायद ये आलिम होते हैं। अल्लाह की कसम, मैं मसलन पे बैठ के कह रहा हूं, रब्बे काबा की कसम है, ये तो तादी से नेमत है, अल्लाह का एहसान है कि आप लोग हमें आलिम कहते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम क़यामत वाले दिन हम तालिब इल्मों के सामने भी नहीं खड़े होंगे। ये तो अंधों में काना राजे वाली बात है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, हम 2 लफ्ज पढ़ के आ गए, वरना आलिम ये नहीं, वो आलिम है। अगर करोड़ों किताबें चल जाएं, मेरे सीने में महफूज हैं। अनवर शाह कश्मीरी, मोहम्मद अनवर नाम था, आ रहे थे एक जगह बयान करने के लिए, तो एक हिंदू ने कहा मुसलमान को, मैंने सुना है तुम्हारा बहुत बड़ा आलिम आ रहा है, मैं देखना चाहता हूं, उससे मुनाजरा करूंगा। उस हिंदू को मुसलमान पकड़ के ले आया, तो मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी कहते थे, वो आए, उस हिंदू की निगाह पड़ी चेहरे पर, वो इल्म की वजाहत, वो नूर, वो तकवा, वो रनाई, वो इखलाक। जब हिंदू ने देखा तो मुसलमान से कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। उसने कहा अभी मुनावरा नहीं किया, बात नहीं की, कहने लगा आज 1400 साल के बाद जो मोहम्मद अनवर है उसका इल्म, उसका नूर इतना टपक रहा है तो तुम्हारे असल मोहम्मद का नूर कितना होगा। तो सबसे पहले जहन्नम में कौन जाएगा? आलिम जाएगा। क्यों गया? उसने तो पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाया था, हमारी तरह दिल की कैफियत नहीं बदली थी। रियाकारी, दुनिया तलबी, धोखा, फराड, वही दुनियादारी, वो पढ़ाता रहा। हो सकता है हजारों शागिर्द भी हों, किताबें भी लिखी हों, बात भी अच्छा करता हो, लेकिन जहन्नम में उठा के डाला जाएगा, क्योंकि अल्लाह रोजे को नहीं देखता, अल्लाह दिल को देखता है। अल्लाह इल्म को नहीं देखता, अल्लाह दिल को देखता है। तो मेरे भाई रमजान आया है, ये रमजान मुबारक का महीना दिल को बदलने का महीना है। अगर दिल नहीं बदला, ना रोजे का कोई फायदा है, ना तरावी का, फिर थको नहीं, फिर उसी तरह रहो, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तब्दीली आ रही है फिर मैं तुम्हें मुबारक देता हूं, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। आलिम को डाला जाएगा। अल्लाह मैंने इल्म पढ़ाया, ये हदीस आप बार बार सुनते हैं, मैं तफसील नहीं खोलता। दूसरा बंदा कौन डाला जाएगा? सखी डाला जाएगा। मेरे भाई नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना आसान है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो दीन का है, या तो सखावत करना है या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। कोई जान नहीं देता, माल भी कोई नहीं देता। सखावत बहुत बड़ा अमल है, वो बदन पे नुमाया होगा, लेकिन जहन्नम में क्यों जाएगा? अल्लाह पाक फरमाएंगे लोग तेरा ज़ाहिर देखते थे, मैं तेरे दिल को देखता था, दिल में देखकर एहसान जितलाता था, या रियाकारी थी, वो हो गया, उठाकर जहन्नम में डाला गया। और तीसरा आदमी कौन जाएगा? जो शहीद होगा। जान देना कोई मामूली काम है, शहीद हो गया होगा, टुकड़े कराए होंगे, लेकिन जहन्नम में जा रहा होगा। बदन पे आमाल नुमाया है, इल्म की दौलत, सखावत की दौलत, शहादत की दौलत, लेकिन इतनी बड़ी दौलतें लेकर जहन्नम में क्यों गया? कि ये काम किए थे, लेकिन दिल की कैफियत नहीं बदली थी। अल्लाह फतेह मैं तुम्हारी दिल को देखता हूं, उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, रोजा रखो, तरावी पढ़ो,
कुरान की तिलावत करो, लेकिन रमजान मुबारक का मकसद समझो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाए। अगर वो आ गई तो मुबारकबाद की मुझसे को, अगर नहीं आई तो फिर रमजान मुबारक के आने या ना आने का मुझे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तब्दीली लाओ। आपने वो हदीस भी सुनी है कि 100 बंदों को कत्ल करने वाला पहले 99 को कत्ल किया, फिर जाकर एक से मसला पूछा कि मैंने इतने बंदे कत्ल किए हैं, बताओ अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। वो भी होगा तो उसने कत्ल कर दिया उसको भी, 100 बंदों को कत्ल, उसने कहा नहीं तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। फिर बताया कि फलां जगह आलिम है, गया उसके पास, कहने लगा कि मैं 100 बंदों को मार के आया हूं, कत्ल किए 100 बंदे। आप शायद कत्ल को मामूली समझ रहे हो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इब्न माजा में, तवज्जो से सुनो। फरमाया अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का नाखून उतार देता है, ये नाखून काट दिया, तोड़ दिया, कोई चीज मारी और वो टूट गया, फरमाया नाखून अगर किसी का कोई उतार के आया तो क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। सिर्फ नाखून, हमने कितनी ज्यादता की हुई है, फिर भी हम कहें कि हमें शफाअत मिल जाएगी। मेरा नबी झंडे लगाने से, मेरा नबी अपने तज़किरे करने से खुश नहीं होता, मेरा पैगंबर आमाल से खुश होता है। अगर नाखून भी काट लिया क़यामत के दिन, इब्न माजा की सही हदीस, फरमाया मेरी सिफारिश की इंतजार न करना। और यहां नाखून नहीं 100 बंदों को कत्ल कर चुका है, गया और कहा कि मैं बंदों को कत्ल करके आया हूं 100 को, अल्लाह मुझे माफ करेगा। और पिछले आलिम ने भी कहा नहीं करेगा, मैंने उसको भी कत्ल कर दिया। अब यहां मुहद्दिसीन ने 2 बातें लिखी हैं, एक ये कि अगला आलिम भी कह रहा था कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन जब इसने बताया कि पिछले आलिम ने ये बताया कि माफ नहीं करेगा, मैंने उसको भी कत्ल कर दिया, तो वो समझे शायद मेरे को ने टरका दूंगा, मैं 1000 कर, अल्लाह तुझे माफ करे, मेरी तो जान छोड़ जा, डर को लो। बाल मुहद्दिसीन ने ये लिखा, डर के कहा कि कहीं मेरे को ना मार दे, जाओ अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन उसने एक अच्छी बात कहा कि अगर तौबा करना चाहते हो तो फिर दिल से तौबा करो, दिल की कैफियत को बदलो, तड़पो, अल्लाह के सामने रो, और दिल की कैफियत को बदलना है तो फलां जगह पे चले जाओ, वहां नेक लोग हैं, साले लोग हैं, उजले दिल वाले हैं, साफ शफाफ दिल वाले हैं, उनके दिलों में हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, अदावत नहीं, एक दूसरे के साथ मुनाफकत नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं, उनके दिल साफ शफाफ हैं, तुम उनमें चले जाओ, तुम्हारा दिल भी साफ होगा, अल्लाह इस वजह से माफ कर देगा। अब हदीस में आपने सुना है वहां सखी, आलिम, शहीद जहन्नम में जा रहा है और ये 100 बंदों का कातिल जन्नत में जा रहा है। क्यों? कि उनके दिल नहीं बदले थे, इस कातिल का दिल बदल गया था। उसने कहा जल्दी पहुंचो, कहीं मारी ना जाऊं, तो इस बस्ती से निकलकर जाने लगा। हदीस में आता है मौत का वक्त आ गया, फरिश्ता आ गया और जब जमीन पे गिरा तो रोकर कहने लगा अल्लाह मैं दिल से तुम्हें राजी करने के लिए निकला हूं, मुझे वहां पहुंचा दे। ना पहुंच सका, रूह निकल गई, अभी तौबा नहीं की, तौबा करने जा रहा है। अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा अजाब और सवाब का। जहन्नम वाले कहते हैं जहन्नम में ले जाएंगे, जन्नत वाले कहते हैं नहीं तौबा के लिए जा रहा है। वो कह रहे हैं की तो नहीं है। मेरे भाइयों अल्लाह की रहमत देखो, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, जाओ फैसला करो, अल्लाह फैसला कर रहा है। वो आया क्यों लड़े हो? जहन्नम वाले कहते हैं 100 बंदों को मार चुका है, और जन्नत वाले कहते हैं तौबा करने जा रहा है, इसका दिल बदल गया है, दिल साफ हो गया है, अल्लाह की रजा आ गई है, तौबा कर चुका है। उन्हें कहा भी गया तो नहीं, जा रहा है। तो तीसरे ने कहा लड़ो नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा है फैसला करने के लिए कि जमीन को नाप लो, अगर वो करीब है तो जन्नत वाले ले जाएं, अगर ये करीब है तो जहन्नम वाले ले जाएं। हकीकत हाल ये थी, वो जमीन दूर थी, तो जहन्नम वालों ने कहा ये तो ये करीब पड़ा है, नाप लो। फिर मैं ऐसे नहीं, देख के नहीं, नापो। तो नापने लगे तो हदीस में अल्लाह इलल अर्ज़, अल्लाह ने डायरेक्ट जमीन को हुक्म दिया, जमीन अल्लाह के हुक्म के ताबे है, मेरे बंदे के करीब हो जा। जब नापने लगे तो वो जमीन चलकर, वो बस्ती चलकर उस बंदे के करीब आ गई। और कुरान में अल्लाह कहता है उज़लिफ़तिल जन्ना, मेरे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो दिल से इतना मुझे राजी करते हैं कि मैं जन्नत उनके दूर होती है, जब वो मुझे राजी करते हैं तो मैं दूर जन्नत को उठाकर उनके कदमों के नीचे डाल देता हूं। अल्लाह हमें भी ऐसे लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह कहता है उज़लिफ़तिल जन्ना, वो मुझे राजी करते हैं, मैं जन्नत को उठाकर उनके कदमों में डाल देता हूं। वो करीब हो गए तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे को जन्नत में ले जाओ। मैं बताना ये चाह रहा हूं, शहीद, सखी, आलिम वो जहन्नम में जा रहा है और 100 बंदों का कातिल जन्नत में जा रहा है। क्यों? कि उन्होंने इतने बड़े अच्छे काम किए लेकिन दिल तब्दील नहीं हुआ, दिल वैसे काले थे, दिल वैसे सियाह थे, उनके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं आई। और ये 100 बंदों का कातिल है, दिल बदला, अल्लाह ने इसको उठाकर जन्नत का वारिस बना दिया। तो मेरे भाइयों दिल बदलो, ये रमजान बदलने का महीना है। अगर वैसे जिंदगी है 11 महीने के मुताबिक तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर तुम्हें रमजान आने जाने का कोई फर्क नहीं। फिर उस हदीस में शामिल हो कि मेरे नबी ने फरमाया वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। बद्दुआ करने वाला कौन है? जिब्राइल, और आमीन कहने वाला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे ईमानदारी से बताओ इस दुआ की कबूलियत में कोई शक है? हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिसकी जिंदगी में रमजान और मुबारक का महीना आए और उसके अमाल में तब्दीली ना आ जाए, वो हलाक और बर्बाद। ये बात बिल्कुल सच्ची है। पहले तो अक्सर मुसलमान रोजे रखते नहीं, अगर कोई रखते हैं तो तब्दीली कोई नहीं। इब्न माजा की हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा से पूछा, फरमाया ये बताओ अगर तुमने दूध लेना हो
किसी से दूध लेना हो और तुम बर्तन लेके चले गए दूध लेने के लिए, और जब बर्तन लेके गए तो दूध देने वाला दूध देने लगा, तो तुमने बर्तन में झांक कर देखा तो उस बर्तन के तह के अंदर निजासत पड़ी हो, तो मुझे ये बताओ तुम उस बर्तन में दूध लोगे? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी नहीं, हम उसमें दूध नहीं लेंगे। क्यों? दूध तो पाक है। तो कहने लगे या रसूलल्लाह दूध पाक है, लेकिन जिस बर्तन में गंदगी नजासत है वो नापाक है, अगर दूध उसमें आएगा दूध नापाक हो जाएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर दूध ज्यादा हो, मनो के मन हो और गंदगी थोड़ी सी हो तो फिर भी, साहबा ने कहा फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एक मन दूध हो, 2 मन दूध हो, अगर उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए तो 2 मन दूध नापाक हो जाता है। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया फिर अपने दिल के बर्तन को जब तुम गुनाहों से नजस करते हो, फिर तुम कैसे अल्लाह का दिया हुआ नूर ईमान वो दिल के अंदर लेने की कोशिश करते हो? जिस तरह दूध लेने के लिए बर्तन का साफ होना जरूरी है, इस तरह अल्लाह की बख्शिश और ईमान को दिल में उतारने के लिए दिल का गुनाहों से पाक होना जरूरी है। जिस तरह नजस बर्तन तुम्हारे दूध को नापाक कर देता है, तुम्हारे दिल का काला होना रोजों को भी नापाक कर देता है, तरावी को भी नापाक कर देता है। इसलिए दिलों को बदलो, कोई अमल करो अल्लाह की रजा की खातिर करो, दिलों को रोशन कर दो, शीशे की तरह चमकदार कर दो, उसके अंदर कोई गर्द गुबार ना हो, फिर रोजा रखाए, अल्लाह इस रोजे के बदले इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। मेरे भाइयों हदीस सुनो, हदीस बड़े से बड़ा अमल फारिग हो गया, क्योंकि तब्दीली कोई नहीं। अगर छोटा सा अमल हो, मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तवज्जो से सुनो, हदीस में फरमाया उरिज़ा अलैया अजूर उम्मती, तवज्जो से सुनो, तवज्जो से। दिलों की अगर कैफियत बदल गई और दिल चमकदार रोशन मुखलिस हो गए, सादे हो गए, हर किस्म के गुनाह से पाक हो गए, फरमाया फिर छोटा अमल भी करोगे, उस छोटे अमल के बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। तो मेरे नबी ने हदीस जिक्र की, उरिज़ा अलैया अजूर उम्मती, मेरी उम्मत के नामा अमाल मुझे दिखाया गया, मैं अपनी उम्मत के नामा अमाल को देख रहा था। तवज्जो से सुनो, फरमाया देखते देखते अचानक एक तिनका, जिसे कख हम कहते हैं अपनी जबान में कख, एक तिनके पर मेरी नजर पड़ गई, तिनका कख उस पर नजर पड़ी। मैंने पूछा ये क्या है? तो मुझे जिब्रील ने बताया इस कख और तिनके की वजह से अल्लाह ने एक शख्स को माफ कर दिया, जन्नत का वारिस बना दिया। कख तिनका। तो मेरे नबी ने पूछा क्यों? फरमाया राइतुल कज़िया का, हदीस के लफ्ज सुनो, राइतुल कज़िया का यखरुजु हर रजुल मिनल मस्जिद, एक आदमी मस्जिद के अंदर आया लेकिन वो उजरे दिल वाला था, उसका दिल तकवे से लबरेज था, तब्दीली आ चुकी थी, वो मस्जिद में दाखिल हुआ, कोई नहीं था, ऐसे सफ को देखा, उस सफ के ऊपर एक तिनका पड़ा हुआ था, कख, एक तिनका। उसने कहा अल्लाह का घर है, मैं इसकी सफाई कर देता हूं। उस तिनके को उठाकर अल्लाह के घर को साफ करने के लिए उसने वो तिनका उठाकर मस्जिद के बाहर फेंका, अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। आज तो मस्जिद की सफाई को मामूली समझते हो, मस्जिद की खिदमत को मामूली समझते हो, मस्जिद की खिदमत को मामूली न समझो। मेरे नबी ने फरमाया उजरे दिल वाला बंदा, साफ दिल वाला बंदा मस्जिद से एक तिनका उठा के बाहर डालता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन मेरे और आप जैसे लोग अगर रोजे रखें, तरावे पढ़ें, तब्दीली कोई नहीं आई, मल्लम यदा कोल जोर बल अमर भी फलैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामा व शराबा, सिवाय भूख के और सिवाय तरावियों में थकने के अल्लाह कहता है कुछ भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, जिस वजह से रोजे तरावी मैंने जरूरी करा दिया, वो तुमने रखे तो सही लेकिन अपने अंदर तब्दीली नहीं लाए। उजला दिल हो, एक तिनका बात डालने पर अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करके रख देता है। अगर मस्जिद की आज तो कहते हैं वो साफ नहीं करना, मैं क्यों करा? वो मस्जिद की खिदमत नहीं करता, मैं क्यों करूं? मेरे भाइयों तुझे अपनी जन्नत चाहिए, और अल्लाह अगर किसी घर की खिदमत ले ले तो फिर एहसान न जतलाया करो। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया ला तमन्नु, फरमाया अलैया इस्लाम, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इस्लाम की खिदमत नसीब हो जाए, रोजा रखना नसीब हो जाए, अगर तरावी पढ़ना नसीब हो जाए, अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना नसीब हो जाए, अगर रोजे खुलवाना नसीब हो जाए, अगर किसी को सैरी कराना नसीब हो जाए, अगर सिला रहमी नसीब हो जाए, गति यतीम परवरी मिस्कीन परवरी नसीब हो जाए, फरमाया ला तमन्नु अलैया, एहसान न जतलाया करो, ये अल्लाह का है, वल्लाहु यमन्नु, फरमाया वल्लाहु यमन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल इस्लाम, ये अल्लाह का एहसान है कि तुमसे थोड़ा सा दीन का काम ले लेता है, वरना रब का दीन किसी का मोहताज नहीं, ये मसाजिद किसी की मसाज नहीं। फरमाया कि अल्लाह का एहसान समझो कि अल्लाह तुमसे दीन का काम ले, रब का एहसान है, वरना तुम सारे रब के मोहताज हो, रब किसी का मोहताज नहीं है। एहसान न जितलाया करो। बहरहाल मैं बात जो कर रहा था वो ये है कि रमजान मुबारक आया है, अंदर की कैफियत को बदलो। अगर अंदर की कैफियत बदल गई फिर थोड़े भी हो जाओगे, अल्लाह का निजाम बदल जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं जंग बदर जब हुई तो तेरे मेरे पैगंबर कितने सहाबा को साथ ले गए? 313। कितने थे बोलो? 313। और वो भी जूती कोई नहीं, फटे पुराने लिबास,
कोई साहबी ऐसे हैं जिनके पास तलवार कोई नहीं, अक्सर 8 तलवारें 7 तलवारें थी, और बंदे 313, आगे मुकाबला 1000 का है जो जंग जो है, और यहां 313 और पांव में जूती कोई नहीं। अगर तलवारें नहीं थी तो तेरे मेरे नबी ने फरमाया खजूर की छड़ियां उठा लो, और बाद साहब पत्थर उठा के खजूर की छड़ियां उठा के पांव से नंगे, बदन पे कपड़े मैले कुचैले फटे पुराने, ऊपर से नजर आ रहे थे कपड़े मैले हैं, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन उनके दिल नूर से मुनव्वर से, कपड़े मैले और दिल नूर से मुनव्वर हैं, बदले हुए हैं। 313 मैदान बदर में, और तेरा मेरा पैगंबर जो मकाम अरीश है, जहां मस्जिद अरीश है, वहां खैमा लगा हुआ है, तेरे मेरे नबी के कंधे कांप रहे हैं और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं कर रहे हैं, और कंधे कांपने की वजह से मेरे नबी की चादर मुबारक भी जमीन पर गिर गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के कंधे पे हाथ रखा, मैं अल्लाह के पैगंबर आप इतना ना रोएं, जिस्म मुबारक कांप रहा है। तो मेरे नबी ने वहां दुआ की, क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा इन तौलिक हाज़िल असाबा लम तौबत फिल अर्ज़ अबदा। ये दुआ आप उलमा से सुनते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मेरे यारों की परवाह है, इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे अपनी परवाह है। इन तौलिक हाज़िल असाबा लम तौबत फिल अर्ज़ अबदा। अल्लाह ये उजले दिल वाले, अल्लाह ये दिलों की नूरानियत वाले, अल्लाह ये तकवे वाले, अल्लाह तेरी मोहब्बत वाले, ये मैं 313 लाया हूं। कपड़े पुराने हैं लेकिन दिल अबू बकर का वो चांद के नूर से ज्यादा मुनव्वर है। कपड़े पुराने हैं, उमर का दिल चांद से मुनव्वर है। कपड़े पुराने हैं लेकिन उस्मान का दिल चांद से मुनव्वर है। कपड़े पुराने हैं लेकिन अली अल मुर्तजा का दिल चांद से मुनव्वर है। मैं इनको लाया हूं, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं कि ये खत्म हो जाएंगे। मैं इनके लिए नहीं हो रहा, अपने लिए नहीं हो रहा, इनके लिए मैं नहीं हो रहा। ये तो कुर्बानियां देने वाले हैं, इन्हें सब कुछ छोड़ दिया लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। मैं इनके लिए नहीं हो रहा। लम तौबत फिल अर्ज़ अबदा। अल्लाह मेरे दिल में तेरी मोहब्बत इतनी है, मैं ये नहीं चाहता कि तेरा नाम खत्म हो जाए। मैं तो उठता हूं, मैं कहता हूं बिस्मिका अमूतु व अहया, मैं तो सोने लगता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयानी, मैं तो तब तेरा नाम लेता हूं। घर में दाखिल होता हूं बिस्मिल्लाह वलजना व खरजना, मैं बाहर निकलता हूं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला रब्बिना, मैं मस्जिद में दाखिल होता हूं बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अफ्ताह लि अबवाब रहमतिक, मैं बाहर निकलता हूं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिफज़लिका, मैं वॉशरूम में जाता हूं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, मैं बाहर निकलता हूं गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अन्नी अज़ा, मैं पानी पीता हूं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पी लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सोता हूं तो तेरा नाम, उठता हूं तो तेरा नाम, अगर कपड़े पहन लूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कसानी, अगर मेरी नजर चांद पे पड़ जाए मैं कहता हूं अल्लाहुम्मा अहिल्ला अलैना बिजुम्न वल ईमान, अगर मैं खाना खाता हूं बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, अगर खा लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अगर बाजार में चला जाता हूं आकर कुर्सी पढ़ता हूं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह अज़ाब देता हूं अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ता हूं अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मरना तेरे साथ है। अल्लाह मैं इनके लिए नहीं रो रहा, अगर ये उजले दिल वाले खत्म हो जाए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उजले दिल वालों की ये कीमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगंबर वलक़द नसरकुमुल्लाहु अंतुम बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, तूने इन उजले दिल वालों का नाम जो लिया, मैं इनकी बरकत से वादा करता हूं कि 5000 फरिश्ते उतारकर तेरा सहाबी, उधर तलवार होगी, इधर अगर उनके हाथ में छड़ी होगी, वो तलवार वाला इतना काम नहीं कर सकेगा जितना तेरा यार छड़ी वाला काम दिखा देगा। मेरे भाइयों, दिल की कैफियत को बदलो, अपने अमाल को बदलो। पता चले कि रमजान और मुबारक का महीना आया है और हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, लेकिन नहीं बदली दिल की कैफियत, उसी के उसी तरह हम रह रहे हैं, तो फिर मेरे भाई इस रमजान का कोई फायदा नहीं। फिर रोजा रखो, कोई फायदा नहीं। रोजा रखने का मतलब यह है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर क्या आ जाए, बोलो परहेजगारी आ जाए। अगर दिलों के अंदर वही बात है, गुनाह है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े, किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया, हदीस पाक में आता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि इनका आपस में किसी बात में इख्तिलाफ है। तो मेरे नबी बार बार पूछते थे उनका क्या हुआ। अल्लाह के नबी अभी तक कोई वो इख्तिलाफ खत्म नहीं हुआ। तो मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो से सुनो, हदीस है, फरमाया उन्ज़ुरू इला हाज़ैनी हत्ता यस्तलिया, फरमाया इन दो बंदों को देखो, फरमाया ये इबादतें भी करते हैं लेकिन इनकी इबादतें जमीन और आसमान के दरमियान लटकी हुई हैं, ऊपर नहीं गई। हत्ता यस्तलिया, फरमाया वो लटकी हुई हैं। जब इनकी आपस में कदूरत खत्म होगी, अल्लाह इबादतों को अपने पास उठा लेगा। बदलो अपने आप को। सहाबा किराम ने पूछा, अय्युन नास अफजल, कौन सा मुसलमान, कौन सा बंदा सबसे अफजल है। ये हदीस बात है और बहुत सारी कुतुब हदीस में ये मौजूद है। अय्युन नास अफजल, कौन सा बंदा सबसे बेहतरीन है। तो जब मेरे नबी से सहाबा किराम ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मखमूमुल कल्ब व सदूकुल लिसान। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हाँ ये चीजें जरूरी है, लेकिन इनके साथ तब्दीली अंदर की आनी चाहिए। तो मेरे नबी ने फरमाया मखमूमुल कल्ब व सदूकुल लिसान। तो सहाबा ने आगे की तवज्जो से सुनो, या रसूलुल्लाह, सदूकुल लिसान का पता है कि जबान का सच्चा हो, वादे का सच्चा हो, मखमूमुल कल्ब कौन है।
تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایسے دل کے ساتھ وہ تقیٌ نقیٌ لا اسم علیہ ولا غلہ ولا بغیہ ولا حسدہ، فرمایا جو مخموم القلب ہے وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک ہیں، جن کے دل صفاف ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہیں، جن کے دلوں میں نور ایمان پیوستہ ہے، جو اللہ کی عبادت کر کے پھر بھی روتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول کر لے۔ فرمایا تقیٌ نقیٌ لا اسم علیہ، کسی کے خلاف ان کو کوئی سروکار نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، گناہوں کی نجاست نہیں ہے۔ فرمایا لا حسدہ ولا غلہ ولا بغضہ، فرمایا ان کے دل ایسے ہیں جس طرح شیشہ ہو اور اس کو دھو دیا جائے وہ شیشہ منور ہو جاتا ہے، ان کے دل منور ہیں۔ فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو ساری دنیا میں بہترین اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے قریب کر لیا، یہ لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ضائع مت کرو، ہر گھڑی اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ایک شخص آیا میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتاؤ کوئی عمل بتا دو میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ آج تم تراویح کو روزے کو معمولی سمجھ رہے ہو، یہ سودا بڑا سستا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، پکار رہی ہیں، کوئی ہے یہ چلا گیا تو پچھتاؤ گے، پہلے بھی کئی رمضان مبارک آئے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا، یہ مہمان ہے چلا گیا، لیکن ہمارے در پہ دستک دے رہا ہے، اٹھو سحری کے وقت، اپنی سحری کا وقت وہ کھانے پینے میں نہ گزارو، اٹھ کر 2 رکعت نفل تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر سحری کھاؤ، اللہ سے دعائیں کرو، یہ دستک دیتا ہے، اٹھو، مسکین پروری کا مہینہ ہے، یتیم پروری کا مہینہ ہے، روزے کھلوانے کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ ان سے کہو افطاری کا ٹائم کھانے پینے میں موبائل میں صرف نہ کرو، یہ مانگنے کا ٹائم ہے۔ فرمایا افطاری کے وقت رب کی رحمتیں تمہارے دروازے پہ ہوتی ہیں، جو آدمی رو کر بخشش طلب کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ وہ آیا کہا کہ مجھے کوئی کام بتاؤ، میرے نبی نے فرمایا 3-4 کام بتائے۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور میری اطاعت کرو۔ فرمایا رمضان کے نماز پڑھو 5 وقت کی، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات ادا کرو، اور تیسرا کام بتایا وہ صوم رمضان، اگر رمضان کا مہینہ آ جائے روزے رکھو۔ وہ شخص جانے لگا، کہنے لگا والذی نفسی بیدی، اے میرے پیغمبر، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ گواہ ہو جائیے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں جو کچھ آپ نے کہا میں اس پہ عمل کروں گا۔ صرف نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، تو میرے نبی پر قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا، لوگوں اگر روز زمین پر کسی جنتی کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جنتی شخص جا رہا ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا۔ تو میرے بھائی یہ برکت و رحمتوں کا مہینہ ہے، کوشش کرو گے اندر کی تبدیلی لاؤ گے، رمضان کی اور پہلے والی زندگی میں فرق نظر آئے گا، رمضان گزرے گا ہماری زندگی تبدیل ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ جو گناہ میں مبتلا ہے توبہ کر لو، تبدیل کر لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ میں نے پہلے بھی درس میں کہا مولانا حامد الحق صاحب رمضان مبارک سے پہلے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، دہشت گردی ہوئی شہید ہو گئے، رمضان تک نہیں پہنچ سکے۔ کئی ایسے بھائی ہم نے موجود تھے، پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج کہاں ہیں؟ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، یہ آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو اس کی قدر کر لے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالی ہمیں 100% رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔